we are going to look analog to digital conversion. Okay, so it is just the same reverse process of DACs. So analog signal will be converted to the digital signal. Okay, and digital signal was being converted to analog signal in the case of DACs. Okay, so an analog to digital converters. Okay, so we will call it ADC. Converter takes an analog input voltage, and after a certain amount of time, so the important thing is certain amount of time. It means at the same time it will not give the output because the processing takes some time. And after a certain amount of time, produces a code, digital output code, which represents the analog input. So what type of output it generates is the representation of analog input. The A to D conversion process is generally more complex and time consuming than the D to A conversion. Remember this thing also. So ADC normally takes more time, and it is also a little bit complex as compared to the D to A. Okay. So there are many factors which determine the performance of ADC. So we'll see all them. Okay. Okay. So what you are seeing is a analog to digital converter, a standard circuitry. Okay, there can be different. This is a common circuit diagram for a ADC. Okay, like that it will work. It is a simple comparator based. Okay, there can be different ADCs available. There are different ADCs available. Okay, this is one of the common circuitry that we use. Okay, and this is to tell us what is the basic operation, how it converts an analog signal to digital signal. Okay, so this is a basic circuit. It's called the comparator based ADC. Okay. So what we are saying is several important types of AD utilizes a DAC a part of their circuitry. We are reading here. Okay. So in we will see that in most of the cases, what we will be getting an analog to digital converter ADC will be using a DAC. This ADC will be using a DAC. Okay. Not always. In one cases, I think that is for flash ADC, we will not be using the DAC. Otherwise, we will be using the DAC. Okay. Okay. So this will be using a DAC. Okay. Normally, what how it will work? Let's check it. Okay. So this is the control unit. Okay. Control unit means this will take all the decisions. Okay. All the controls will be given by this. Okay. So this is a control unit. कंट्रोल लिखा हुआ है जो गलत है एक्चुअली दिस इज अ कंट्रोल यूनिट तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ कंट्रोल यूनिट ठीक है so what we if we want to start the conversion okay so first we have to give a start command okay when we give the start command only after that the conversion will start otherwise there will be no conversion of analog to digital okay so in this control unit has a command called the start command. When we give this command, only after that the conversion will begin. Otherwise, it will be stopped. Whatever, even this input is changing, but it will not generate any output signal because we haven't started the conversion. Okay. So, if we want to start conversion, we have to give this start command pulse. When we give this pulse to this control unit, only after that start
the command. Okay. So what is there when we give uh, this output, this analog signal is coming to this control unit, okay, and it does the sampling at a rate determined by the clock. The control unit continuously modifies the binary number that is stored in the register. Okay. So ये हमारा क्लॉक डिसाइड करता है, ठीक है, और जो यहाँ पर नंबर स्टोर है रजिस्टर में, ठीक है, जो यहाँ पर नंबर स्टोर है, इट इज मॉडिफाइड बाय द एट अ रेट विच इज डिसाइडेड बाय द क्लॉक। ओके, तो आपको एक बात पता है कि क्लॉक क्लॉक के अगर हम पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज क्लॉक जो भी हम प्रेफर करते हैं, तो पॉजिटिव एज अगर हम ले लेते हैं तो सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिव एज पर ही होंगे, है ना। ये आप जानते हैं पहले से, सारे सारे चेंजेस जो होंगे वो पॉजिटिव एज पर ही होंगे। अगर ये क्लॉक की स्पीड बहुत ज्यादा है तो ये चेंजेस जल्दी जल्दी होंगे, अगर क्लॉक की स्पीड कम है तो ये चेंजेस स्लो स्लो होंगे। तो क्लॉक की स्पीड हमारे डिसाइड करती है कि रजिस्टर में स्टोर अगर जो भी डेटा है तो उसको किस स्पीड से चेंज करना है, इट इज डिसाइडेड बाय द क्लॉक। ये आप जानते हैं कि क्लॉक पर ही सारे डिसीजन होते हैं, सारे सिग्नल चेंजेस होते हैं वो क्लॉक पर होते हैं। क्लॉक पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज जो भी हम यूज करें, बट ऑल द चेंजेस अकर्स एट क्लॉक। So what will happen? Binary number in the is converted to an analog voltage by the DAC। देखिए अब रजिस्टर है, यहाँ पर रजिस्टर में क्या होगा, बाइनरी नंबर स्टोर होगा, ठीक है। अगर हम 8 बिट है तो 8 बिट स्टोर होंगे, ठीक है। अब इन 8 बिट जो भी है, अगर 4 बिट हम कहें या 8 बिट कहें, जो भी 8 बिट का है, तो हमें क्या करना है, इसको दिस विल बी कन्वर्टेड टू एनालॉग बाय यूजिंग दिस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। वी विल कन्वर्ट दिस टू एनालॉग। ओके ओके, so ये यहाँ तक प्रोसेस होगी। देन व्हाट वी हैव वन मोर थिंग, okay, then last thing that we have last block that we have here is this comparator। okay, last thing that we have is comparator। okay, यहाँ पर देखिए इस सिग्नल का नाम क्या है, VAX, ये क्या है, VA। ओके, तो VAX क्या है, VAX है हमारा ये वाला सिग्नल, ये भी एनालॉग है, ठीक है, और VA भी हमारा एनालॉग है। VAX हमें कैसे मिला, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन से हमारा आउटपुट VAX है, ठीक है। अभी क्या है, ओपैम्प जो हमने ओपैम्प पहले देखा था, ठीक है, उस ओपैम्प को कंपैरेटर के तरीके से यूज कर सकते हैं। कंपैरेटर का मतलब क्या होता है, मैं आपको कंपैरेटर का एक मतलब बता दूं। देखिए VA कहाँ लगा हुआ है, पॉजिटिव पर लगा हुआ है, ठीक है। तो if VA is greater than VAX, तो कंपैरेटर का काम क्या है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, कंपैरेटर लगा हुआ है। कंपैरेटर क्या होता है, क्या होता है, इन दोनों सिग्नल को कंपेयर करना और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देना। तो जब सिग्नल को हम कंपेयर कर रहे हैं, तीन पॉसिबिलिटी है, तो सिग्नल बराबर हो सकते हैं, या VA VAX से बड़ा होगा, या VAX VA से बड़ा होगा, ठीक है। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। हम इक्वलिटी वाली को भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि VA क्योंकि नॉर्मली ये डिजिटल सिग्नल है, ठीक है, डिजिटल से एनालॉग जनरेशन में हो सकता है फोर्थ प्लेस पर भी डेसिमली फोर्थ प्लेस पर डिफरेंस हो, बट देयर विल बी अ डिफरेंस। तो अब देखिए VA इज ग्रेटर देन VAX, इस केस में क्या करेगा, ये आउटपुट हमारा, तो VA पॉजिटिव पर लगा हुआ है, VX नेगेटिव पर लगा हुआ है, तो VA ऐसे ये निकालता है VA। ये देखिए इसको, इसका कंपैरेटर कैलकुलेशन जो होती है, कंपैरेटर का आउटपुट आपके सामने लिखता हूँ। गेन ऑफ द कंपैरेटर, कंपैरेटर का गेन जो भी है A नॉट टाइम्स VA माइनस VX, ठीक है। ये है आउटपुट ऑफ कंपैरेटर। इसको आप रिमूव कर दो,
मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर। तो जो VC मैं इसे लिख रहा हूँ, दिस इज द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर। So VC is output is A naught times VA minus VAX. Okay. So if VA is greater than VAX, तो हम पहला केस यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, if VA greater than VAX, then what will be the answer? A naught times positive. This will be a positive value. This will be a positive value. Okay. So A naught into positive will be a positive answer. Okay. So this will give a positive answer. ठीक है। और दूसरा कंपैरिजन पॉसिबल क्या है? VA इज ग्रेटर देन VAX। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तो इस केस में क्या होगा, हम सेकंड केस कंसीडर करेंगे। सेकंड केस में क्या होगा हमारा, VC क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इन सेकंड केस VC इज नेगेटिव, इन फर्स्ट केस द VC इज पॉजिटिव। केस में क्या है, VC कैसा आएगा, इस केस में VC विल बी पॉजिटिव, और इस केस में VC कैसा आएगा, VC विल बी नेगेटिव। ओके, ठीक है। तो अब आप मान, ठीक है। तो और कंपैरेटर में क्या होता है, जब ऐसा होता है तो पॉजिटिव में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जनरेट करता है। ठीक है, तो सपोज ये Vref पॉजिटिव वैल्यू एक वोल्टेज जनरेट करेगा। ठीक है, और एक नेगेटिव वोल्टेज सपोज जीरो, जब ये VC नेगेटिव होगा तो एक नेगेटिव वोल्टेज इक्वली जनरेट करेगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसा मान लीजिए कि जब पॉजिटिव होगा तो ये Vref जनरेट करेगा, Vref ये बाइसिंग वोल्टेज होता है। अभी हमने असल में आपने कंपैरेटर पढ़ा नहीं है, इस वजह से मैं उसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और जब नेगेटिव होगा तो सपोज माइनस Vref जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये माइनस Vref जनरेट करेगा। तो ये दो चीजें यहाँ पर सिग्नल इसको इससे डिसाइड होगा। ठीक है, तो VC की वैल्यू किससे डिसाइड होगी, VC पॉजिटिव आएगा तो कितना आएगा, Vref आएगा, VC नेगेटिव आएगा तो माइनस Vref आएगा। तो कंपैरेटर बस दो आउटपुट जनरेट करता है, तो पॉजिटिव वैल्यू हाईएस्ट और नेगेटिव वैल्यू लोएस्ट। ये कंपैरेटर दो आउटपुट जनरेट करता है, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, सो कंपैरेटर जनरेट्स टू आउटपुट, if the difference is positive so it will generate the highest positive voltage। ओके, वो एक डिसाइडेड वोल्टेज होता है जो हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, अब 12 वोल्ट या 14 वोल्ट जो भी हो हम वो लगाते हैं, तो वो ये हाईएस्ट वोल्टेज जनरेट करेगा। और हम नेगेटिव वोल्टेज भी लगाते हैं माइनस Vref, तो वो उतना नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करेगा, ये नेगेटिव होगा डिफरेंस का। ठीक है, तो ये कंपैरेटर की फंक्शनिंग हो गई कि जब इन दोनों का कंपैरिजन पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट करेगा हाईएस्ट, दैट इज Vref, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करेगा, दैट इज माइनस Vref। ठीक है, तो अब मैं ये सारी ड्राइंग थोड़ा रिमूव करता हूँ। अब आपको पता है कि VC की वैल्यू कैसे, कंपैरेटर आउटपुट की वैल्यू कैसे डिसाइड हो रही है। ठीक है, तो हमारा ये सर्किट है। ठीक है, तो अब हमारा देख लीजिए फिर से एक बार ये सब कहाँ पर क्या ऑप्शन हो रहा है। तो ये हमारा एक पहले एनालॉग सिग्नल हमारा होगा। इनिशियली हमारे पास सपोज कुछ भी नहीं है, स्टार्ट ऑफ द कमांड, कुछ पता है। तो इनिशियली हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो सपोज ऑल बिट 0 0 होगी। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 होगा, ये 0 होगा। मैं एक एग्जांपल लेकर के दिखा रहा हूँ आपको। तो बी ए माइनस 0 और बी ए सपोज पॉजिटिव वैल्यू हमने अप्लाई की, तो बी ए माइनस 0, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, प्लस Vref आ जाएगा। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन किसको मिलेगी, कंट्रोल यूनिट को। अब इस कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, इस Vref के अकॉर्डिंग अपने डिजिटल सिग्नल को रजिस्टर में चेंज करेगी। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को यहाँ पर चेंज करेगी और क्या करेगी, इसको बढ़ाएगी। ठीक है,
इसमें कई असल में 2-3 टाइप के होते हैं, तो बढ़ाना घटाना उस पर डिपेंड करता है कि चेंज कैसे होगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो बेसिक फंक्शन है कंट्रोल यूनिट क्या डिसाइड करेगी, आने वाले सिग्नल को देख करके, VREF को देख करके ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, कंट्रोल यूनिट विल चेंज द डिजिटल सिग्नल इन द रजिस्टर, और फिर चेंज होने के बाद सपोज कुछ नया VX आएगा, फिर उसको कंपेयर करेगी, फिर रिजल्ट आएगा यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव। एक सेकंड, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है सर, जैसे VREF की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वोल्टेज हाईएस्ट होता है, इन द सेम वे VREF के कुछ क्वेश्चन आपका अधूरा है, दोबारा आपका क्वेश्चन कुछ अधूरा है सर। जैसे VREF की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वोल्टेज हाईएस्ट होता है, इन द सेम वे VREF के। हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे VREF की नेगेटिव होगी, वैल्यू लोएस्ट होगी। हाँ, तो देखिए ये यही पर है, VREF असल में हम यहाँ पर वोल्टेज लगाते हैं, ओपन में ही लगाए जाते हैं 2 वोल्टेज। ठीक है, हम इसे नॉर्मली VCC, हम VREF में यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ, हम उससे कंपैरिजन कर रहे हैं इस वजह से, तो हम इसे माइनस प्लस VCC और माइनस VCC बोलते हैं, ये बाइसिंग वोल्टेज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 12 वोल्ट होते हैं, तो 12 वोल्ट होगा, ये माइनस 12 वोल्ट होगा, ये 15 वोल्ट होगा, ये माइनस 15 वोल्ट होगा, ऐसा वोल्टेज हम इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो हम अप्लाई करते हैं वही उसका कंपैरेटर में वही आउटपुट हमें यहाँ पर मिलता है। जब पॉजिटिव मिलेगा तो प्लस VCC मिलेगा, जब नेगेटिव मिलेगा तो माइनस VCC मिलेगा, ऐसे में आउटपुट मिलता है। तो ये तो हाईएस्ट और लोएस्ट की ही बात है, यहाँ पर जो कि आउटपुट मिलेगा तो हाईएस्ट मिलेगा या लोएस्ट मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट इज द कंपैरिजन। I hope this answers your question. Someone. Okay. तो ये हमारा यहाँ तक कंपैरिजन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अभी वही बात जो वर्ड में जो यहाँ पे मैंने कही वो यहाँ वर्ड में लिखी हुई है। ठीक है, हो सकता है उसका थोड़ा डिफरेंस। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या लिखा हुआ, द कंपैरेटर कंपेयर्स VX विद द एनालॉग इनपुट VA। ठीक है, इन दोनों को ये कंपेयर करेगा। एज लॉन्ग एज दिस इज द केस, VA ग्रेटर देन VX, कंपैरेटर आउटपुट हाइज। ठीक है, तो कंपैरेटर का आउटपुट सीधा सीधा हाई कह रहा है। ठीक है, तो हाई और मैंने आपको पॉजिटिव वैल्यू बता दी कि हाई वैल्यू जनरेट करें, जब भी VA ग्रेटर देन VX होगा तो कंपैरेटर का आउटपुट हाई होगा। व्हेन VA एक्सीड्स VA बाय एटलीस्ट एन अमाउंट, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है किससे बड़ा हो। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर नहीं, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बड़ा हो, सपोज VAX बड़ा हो जाता है VA से, लेकिन कितनी अमाउंट से बड़ा हो, वो इसको लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिफाइन किया गया है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब इसका ये है कि कम से कम ये VAX, एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये है। ठीक है, इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये दोनों से मिला करके अब ये इससे ज्यादा हो, ठीक है, तब हम उसे बोलेंगे कि हाँ VX उससे ज्यादा हो गया। अगर नहीं होगा तब हम उसे लो में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज कई बार जीरो भी होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको कई बार जीरो ही कंसीडर करेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज को, और कई बार ये स्पेसिफाई हो सकता है उसका 0.5 वोल्ट हो या कोई स्मॉल वैल्यू हो। ठीक है, द कंपैरेटर आउटपुट गोज लो। ठीक है, अगर आप इस लाइन को चाहें तो आप इस लाइन को रिमूव भी कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज वाला। सो कुल मिलाकर हम सिर्फ अभी 2 पॉइंट देख रहे हैं कि VA ज्यादा VAX से और VX VA से ज्यादा है, कौन किससे ज्यादा, सिर्फ ये कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, द कंपैरेटर आउटपुट गोज लो एंड स्टॉप द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द रजिस्टर नंबर। ठीक है, तो ये जैसे ही आउटपुट देखिए अभी क्या था कि कंपैरेटर आउटपुट कैसे जनरेट कर रहा था, कंपैरेटर आउटपुट जनरेट कर रहा था, VA हमारा VX से ज्यादा था, ये वाज VA ग्रेटर देन VX। सो वो हमारा जो भी डिजिटल सर्किटरी है, कंट्रोल सिग्नल है, वो हमारा कन्वर्जन करता रहेगा, डिजिटल इनपुट को बढ़ाता रहेगा। ठीक है, डिजिटल रजिस्टर में स्टोर वैल्यू को बढ़ाता रहेगा, और जब कंपैरिजन के बाद ये रिवर्स हो जाएगा, VX विल बी ग्रेटर देन VA, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो स्टॉप कर देगा कन्वर्जन के, हमारे दोनों लगभग बराबर है। ठीक है,
at this point Vax is close approximation to Va, ठीक है। जब ये रिवर्स बराबर हो, जिस पॉइंट पर जैसे ही बराबर होगा उस पॉइंट पर से ये स्टॉप कर देगा। The distal number of the in the resistor which is the distal equivalent of Vx is also the approximate distal equivalent of Va within the resolution and accuracy of the system. The control logic activates end of conversion signal when the conversion is complete. मैं आपको एक बार फिर से सर्किट में लेके चले आता हूँ, आपको यहाँ पर शायद कुछ कंफ्यूजन हो रही है। मैं आपको सीधी सर्किट में दोबारा लेके चले आता हूँ, ठीक है। तो आपकी इतनी बात तो समझ में आ गई, कंपैरेटर एक पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट करेगा और एक नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करेगा, ठीक है। अगर VA ग्रेटर देन Vx है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट करेगा, VA लेस देन Vx है ये नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, तो जैसे इसने पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट किया, अब ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, कंट्रोल यूनिट को क्या पता चलेगा, जब ये पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट कर रहा है इसका मतलब कंट्रोल यूनिट को ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अप्लाइड एनालॉग सिग्नल इज ग्रेटर देन माय कन्वर्जन। तो इसमें जो मैंने जो डिजिटल का इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल मैंने दिया है, इसका मतलब ये है कि अप्लाइड एनालॉग सिग्नल इज ग्रेटर देन दिस कन्वर्टेड एनालॉग सिग्नल, ओके। तो ये क्या करेगा, अपने डिजिटल सिग्नल को बढ़ाएगा या चेंज करेगा, जिससे कि अब ये सिग्नल फिर Vx बढ़ जाएगा, फिर कंपेयर करेगा, फिर देखेगा कि नहीं, अब देखेंगे, फिर चेक करेगा VA बड़ा है Vx, फिर Vx बड़ा आ जाएगा, तो फिर क्या करेगा कि अच्छा मेरा भी सिग्नल अभी भी छोटा है, इट विल अगेन इंक्रीज दिस वैल्यू एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू जब तक कि क्या ना हो जाए, रिवर्स ना आ जाए, VA छोटा ना हो जाए Vx से। जैसे VA Vx से छोटा हो जाएगा तो उस पॉइंट पर वो समझ जाएगा कि अब हमारा सिग्नल जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया। तो यहाँ पर जो डिजिटल वर्ड बनेगा, यहाँ पर जो डिजिटल वर्ड बनेगा तो वो क्या होगा, वो इक्विवेलेंट होगा इस एनालॉग का, ठीक है। और जब ये सिग्नल दोनों बराबर ही हो गए, ठीक है, इसी पॉइंट पर ये चेंज हुआ तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा दोनों में, ठीक है। अब किसी स्टेप में ये चेंज हो रहा होगा, आपको पता है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन स्टेप्स में होता है, ठीक है। ये किसी स्टेप में हो रहा होगा, ठीक है। सपोज इस स्टेप एनालॉग सिग्नल की वैल्यू, मैं आपको ये बात समझा दूं, अगर ये बात आप समझ गए तो मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर कर रहा हूँ। तो सपोज एनालॉग सिग्नल यहाँ पर है VA, ठीक है, इस स्टेप के बीच में, ठीक है, इस स्टेप के बीच का सिग्नल एनालॉग सिग्नल है, तो Vx या तो यहाँ पर होगा, यह स्टेप होने के बाद इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि Vx इस बीच में तो नहीं हो सकता, सिर्फ स्टेप्स में वैल्यू चेंज होती है। तो VA जब यहाँ पर है तो यहाँ पर ये इससे बड़ा है, और जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही ये इससे छोटा है तो हमें नहीं पता कितना छोटा है, फिर ये इसको कंपेयर करेगा और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Vax बड़ा हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा सिग्नल स्टोर्ड है यहाँ पर, ये जो स्टोर्ड सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल जो हमारा है, वो इस एनालॉग सिग्नल का इक्विवेलेंट है और ये दोनों भी आपस में लगभग बराबर है। अच्छा, अब आप एक चीज देख सकते हैं इसमें कि दोनों में डिफरेंस कितना हो सकता है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है एक स्टेप साइज की एरर हो सकती है, ठीक है, एक स्टेप साइज की एरर हो सकती है, ठीक है। तो पहले हाँ, ठीक है, तो इन दोनों में क्या है कि स्टेप साइज की एरर बहुत पॉसिबल है, ठीक है। तो एक स्टेप साइज का कन्वर्जन की एरर इसमें पॉसिबल है। अच्छा, मैं इसको किसी ने कुछ फाइनली किसी ने पूछा है, सर ये सर्किट तो एनालॉग डिजिटल है, कन्वर्टर है, तो फाइनली डिजिटल आउटपुट कहाँ पर मिलेगा? डिजिटल आउटपुट ये आपका रजिस्टर में मिल जाएगा, जो भी आपका रजिस्टर में सेव हो रहा है, ठीक है। द रजिस्टर विल सेव द फाइनल डिजिटल आउटपुट, ओके, क्लियर। एक बात तो ये होगी, दूसरा क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर टू एनालॉग सिग्नल कंपैरेटर है, टू एनालॉग सिग्नल कंपैरेटर को देगा, तो डिजिटल आउटपुट कहाँ मिलेगा? डिजिटल आउटपुट यहाँ पर स्टोर होगा, ये जो हमारा रजिस्टर है इसमें डिजिटल आउटपुट स्टोर होगा, कंपैरेटर पॉजिटिव या नेगेटिव आउटपुट तो एनालॉग देगा, हाँ, ठीक है। कंपैरेटर देखिए हमारा जो हमें देखिए इसका पर्पस क्या है, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, ये एडीसी है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एनालॉग सिग्नल ये मिल रहा है,
डिजिटल आउटपुट कहाँ जाएगा, डिजिटल आउटपुट इस रजिस्टर में स्टोर होगा, ठीक है, डिजिटल आउटपुट जो होगा वो इस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा यहाँ पर हमें एनालॉग सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो हम कंट्रोल यूनिट इस बात से डिसाइड करेगी कि पॉजिटिव आ रहा है या ये सिग्नल नेगेटिव आ रहा है। अगर ये सिग्नल पॉजिटिव आ रहा है, अकॉर्डिंगली ये कंट्रोल सिग्नल अपने इस डिजिटल सिग्नल को चेंज करेगा जिससे कि ये PAX जो है वो इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो बराबर नहीं होगा किसी पॉइंट पर, ये उससे जाकर के बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये जो BAX है ये स्टेप्स में चेंज होगा, क्योंकि ये क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन से मिल रहा है हमें, ठीक है। VX ये VX का वेरिएशन है, VX ये ऐसा होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक केस बता रहा था जहां पर एक चेंज एरर मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे ये चेंज में मिल सकता है। तो एक चेंज मैं आपको दिखा दूं फिर से आगे दोबारा कि सपोज हमारा ये VA जो है वो यहाँ मिडिल में था, ठीक है। तो एक स्टेप पहले VX की वैल्यू ऊपर होगी, प्लीज आप लोग ऑडियो अपना बंद रखें और किसी को क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, प्लीज अपना ऑडियो बंद रखें, ठीक है। तो VX की वैल्यू यहाँ पर होगी, तो VA और VX आपस में कंपेयर करेगा, देखेगा VA इज ग्रेटर देन VAX, तो क्या होगा, ये कह देगा कि यहाँ का आउटपुट पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहाँ का आउटपुट पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर फिर क्या करेगा, ये फिर चेंज करेगा, और फिर चेंज करने के बाद क्या करेगा, VAX को फिर से बढ़ाएगा, ठीक है। और VX को बढ़ाने के बाद VX की नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, VX की नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू ये होगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ये वाली ये लोअर लेवल ये वाला होगा, VAX की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब देखिए कि इस केस में क्या हुआ कि ये X जो है वो VA से ज्यादा हो गया, ठीक है। VA की वैल्यू क्या हो गया, BA जो है VAX जो है वो BA से ज्यादा हो गया, ठीक है। जैसे ये ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या हमें नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, जैसे नेगेटिव मिलेगा तो ये समझ जाएगा कि अब हमारा जो सिग्नल है, क्योंकि इससे पहले तो चेंज नहीं हुआ था, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव आते आते एकदम नेगेटिव आ गया, तो ये अब कंट्रोल यूनिट समझ जाएगा कि कन्वर्जन हो गया है हमारा, मतलब कि जो एनालॉग सिग्नल था उसका अप्रोक्सीमेटेड डिजिटल सिग्नल हमें मिल गया, क्योंकि एग्जैक्ट कभी नहीं मिल सकता। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक स्टेप का एरर, हाफ एक स्टेप की एरर पॉसिबल है, ठीक है, नॉर्मली हाफ, ठीक है। तो ये देखिए कि स्टेप की एरर पॉसिबल है, तो ये हो सकता है कि अगर मिडिल में हो, पहले तो ये सेंस करेगा कि ज्यादा है, मतलब VX कम है तो उसको बढ़ा देगा, लेकिन अभी VX VA से ज्यादा हो जाएगा, तो एक एरर पॉसिबल है, ठीक है। तो एक स्टेप की वजह से डिजिटल सिग्नल आएगा, वो एक एरर पॉसिबल है, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव आएगा ये अपना कन्वर्जन स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा, तो इसके पास क्या, डिजिटल के पास क्या स्टोर होगा, डिजिटल के पास ये सिग्नल एनालॉग इसने जनरेट किया होगा उससे पहले, ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल इसने जनरेट किया होगा, एनालॉग सिग्नल करस्पॉन्डिंग इस पर डिजिटल वर्ड यहाँ पर स्टोर होगा। आई होप कि आपकी ये समझ में आ गया होगा, अगर किसी की नहीं आया हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, रिपीट इट, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड मैंने आपको फॉर्मेट बताया, डिपेंडिंग ऑन ADC इसका कंपैरिजन का तरीका, तो कंपैरिजन तो हमेशा सेम ही रहेगा, बट ये जो रजिस्टर है जो चेंज कर रहा है, ये चेंज करने का तरीका चेंज होता जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ADC, हम कौन सा ADC यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे रजिस्टर में वैल्यू को चेंज करेंगे, ये चेंज होता जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ADC भी आगे से, ठीक है। बट स्टैंडर्ड फॉर्मेट इट विल बी सेम। अच्छा 9:40 हो गया, अगर आपकी क्लास ना हो तो वी कैन कंटिन्यू, डू यू हैव क्लास? Yes, sir. Okay, we have class then. Okay, already I have exceeded the time, we might have to join there, attendance will take further 5 minutes, so it would be better you give your attendance on the WhatsApp, okay, and join for your next class, okay. I hope you understood this, and I'll upload this recorded lecture